Participate in this breast cancer awareness day. I'm really sorry for the delay. There were some technical issues. We were actually conducting the poster competition which was done by the students, and hats off to all the teachers who have helped the students and the students themselves who have worked very hard. I'm Dr. Nida Saeed, and today I'm going to tell you some important points regarding breast cancer awareness. I have made a presentation also, but I'm going to tell you a few points in detail regarding breast cancer, when to know that the lump is suspicious, and when to contact your doctor, and what age is important to consider that a lump should be examined by the doctor. So the prevalence of breast cancer is every 1 woman among 9 women suffer with breast cancer, which is a very big ratio. अगर हम इस तरह सोचें कि हर 9 में से 1 औरत को ब्रेस्ट कैंसर होना ही है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हाउ कॉमन द डिजीज़ इज़. Worldwide, breast cancer is the most common cancer among females after lung cancer. मतलब वैसे worldwide lung cancer is most common, and next is breast cancer, but most common cancer in female is breast cancer. So first of all, I'm going to discuss few points regarding the myths of breast cancer. So there is a misconception that if breast cancer runs in your family, you'll definitely get it. So it's not like this. No doubt there is a 5% more risk of breast cancer in you if your family is having a history of breast cancer, but it's not definite that you're going to get breast cancer. Not all lumps are cancerous. Even 60 to 70% of the lumps are non-cancerous. There is also a misconception that when a female came to know that she's having breast cancer, they think that it's a death sentence. No, it's not like that. We are having very good treatment options, and even now breast can easily be preserved if it is detected early. So what's the main motto of all these awareness programs going on these days is early detection, prompt treatment. In my presentation, I am repeatedly going to tell you that what is the main aim to give you people awareness. अगर आज के मेरे सेशन के बाद हर एक फीमेल जब अपने घर में जाएगी, या जितने मेल्स हैं, you all can educate योर फैमिली मेम्बर्स. मतलब अगर एक बंदा जाकर घर में 10-15 लोगों को अवेयरनेस दे रहा है, तो आई थिंक कि बहुत बड़ा हमारा गोल अचीव हो गया. बिगर ब्रेस्ट are more prone to breast cancer. It's not like that. Actually, in bigger breast there is the examination is difficult. जो lower quadrant होता है उसके अंदर, if the breast size is large, it is difficult to examine the breast. तो उस केस में ये होता है कि वो मिस हो जाते हैं, तो एक आप ये ले सकते हैं कि ज़्यादा चांस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ गया है तो ब्रेस्ट कैंसर का चांस भी ज़्यादा बढ़ जाएगा. ओके, वो बात जो मैंने पहले भी डिस्कस की कि नॉट ऑल लम्स आर कैंसेरियस. एक चीज़ जो अब रिसेंटली देखने में आ रही है ड्यू टू आई डोंट नो नॉन हेल्दी लाइफ स्टाइल और व्हाट, दैट यंग फीमेल्स इन देयर टीन एज एंड इन 20s आर सफरिंग विद ब्रेस्ट कैंसर. सो यू कैन not say that if you are young you cannot have breast cancer. Only your clinician can decide whether it's a cancerous or malignant lump or it's a benign, यानी बेज़रर गिल्टी या ख़तरनाक गिल्टी सिर्फ आपका डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है, कभी भी आप डिसाइड नहीं कर सकते. बचपन से जब 9 से हम ये पढ़ते थे बायोलॉजी, तो हम हमेशा ये पढ़ते थे कि बायोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस. हमेशा ये जुमला मेरे जहन में रहता है. कोई भी चीज़ 100% कहना कभी भी हम नहीं कह पाते कि हाँ भाई 100% ये तो है ही. तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि पेनफुल लम्स के बारे में कहा जाता है कि पेनफुल लम्स तो ख़तरनाक नहीं होते, और जो पेनलेस लम्स होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं. ये बात ठीक है. 80 to 90% जो है वो जो कैंसर का लम्प होता है वो पेनलेस होता है, बट नॉट ऑलवेज. इट कैन प्रेजेंट विद अ प्रिकिंग पेन, विद अ स्मॉल सेंसेशन एंड विद इवन सिवियर पेन. तो ये 100% कोई नहीं कह सकता कि पेनलेस लम्प है तो वो कैंसर का होगा. अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि नॉट ओनली फीमेल्स बट मेल्स कैन ऑल्सो हैव ब्रेस्ट कैंसर, बट द रेशियो इज़ वेरी लेस. ओनली 1% ऑफ द मेल्स गेट
breast cancer, but still there should be awareness given to the males. ओके, एंटीप्रेस्पिरेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि ना यूज़ करो और ये ब्रेस्ट कैंसर करा देगा, तो ऐसा कोई रिसर्च से ये प्रूव नहीं हुआ कि एंटीप्रेस्पिरेंट वो सिंपली जो है वो स्वेट ग्लैंड्स से सिक्रीशंस को कम कराता है, ऐसा उसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, वैसे वाइट शुगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इट्स ऑब्वियसली अनहेल्दी बहुत एक्सेस में लेना, लेकिन इट डजंट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशनशिप विद ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, वैसे भी ये कि अवेयरनेस देने का मकसद ये है कि सेल्फ स्क्रीनिंग की जाए, ख़ुद को एग्ज़ामिन किया जाए, तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अर्ली डिटेक्शन में। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट कि औरतों को लगता है कि अगर कैंसर आ गया है तो अब तो छाती ही निकाली जाएगी, ऐसा नहीं है। अब बहुत सारी जो है वो ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम ब्रेस्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं, और अगर लास्ट में हम ब्रेस्ट प्रिजर्व नहीं भी कर सके तो भी हम जो है वो फ्लैप्स, डिफरेंट तरीके प्लास्टिक सर्जिकल के प्रोसीजर्स होते हैं जिनके थ्रू हम आर्टिफिशियल ब्रेस्ट बना सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अब ख़त्म होना चाहिए कि मेस्टेक्टमी इज़ दी ओनली सोल्यूशन फॉर ब्रेस्ट कैंसर, इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम ब्रेस्ट की अभी इन्वेस्टिगेशंस, ये ब्रेस्ट की इन्वेस्टिगेशंस की बात करेंगे, उसमें ये कहा जाता है ट्रू कट बायोप्सी या नीडल बायोप्सी से बड़े डरते हैं मरीज़ कि नहीं ये तो आप छेड़ रही हैं इसको, ये तो फैल जाएगा, ये तो जब एक्सपोज्ड होगा नीडल से तो वो इसको फैला देगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इससे बिल्कुल भी नहीं घबराने की ज़रूरत है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है ये कि मैमोग्राम नहीं हो सकता जिनके इम्प्लांट्स हैं, ऐसा नहीं है। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कि अगर किसी के अंदर भी ये फैक्टर है तो उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आप नहीं चेंज कर सकते और कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं जिनको आप चेंज कर सकते होते हैं। अच्छा, अब जैसे कि एज है, एज बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर में। फॉरेन कंट्रीज़ में 50 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कॉमन है और मैमोग्राम, स्क्रीनिंग मैमोग्राम भी आफ्टर 50 ईयर्स एडवाइस किया जाता है। बट इन आवर कंट्री 40 ईयर्स, 35-40 ईयर्स के बाद ही जो है वो सीए ब्रेस्ट ज़्यादा देखा जाता है, इसीलिए मैमोग्राम भी 40+ के बाद एडवाइजेबल होता है। अगर सालाना नहीं करा सकते स्क्रीनिंग मैमोग्राम तो एटलीस्ट 2 साल में एक दफ़ा कराएं। अभी आगे मैं बताऊंगी कि स्क्रीनिंग मैमोग्राम क्या होता है। अच्छा, एक तो एज की बात हो गई कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि यंग फीमेल्स में नहीं होता, लेकिन जो 35 से 40 साल की उम्र के बाद गिल्टियाँ होती हैं उनके लिए हम बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, उनके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है। अच्छा, जेंडर तो हमें पता ही है कि फ़ीमेल जेंडर जो है उसमें ऑब्वियसली ये मोस्ट कॉमन है। एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफ स्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा कि यहाँ स्टाफ ने बहुत ज़्यादा कुछ पोस्टर्स में बहुत एम्फेसिस किया हुआ था, विच इज़ वेरी गुड, कि हेल्दी लाइफ स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली एज अ फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर बट ओवरऑल भी। हम जब भी बात करते हैं तो एक्सरसाइज एंड नॉट ईटिंग ऑल काइंड ऑफ जंक फूड, तो ये तो है ही एक रिस्क फैक्टर। अच्छा, नली पैरिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नली पैरिटी मतलब कि कभी बच्चे नहीं हुए, एक इसका रिस्क फैक्टर है। दूसरी चीज़ है कि अर्ली मेनार्की यानी पीरियड्स का जल्दी होना और पीरियड्स का लेट बंद होना। अर्ली मेनार्की एंड लेट मीनोपॉज यानी जितना साइकिल्स के साथ किसी भी फीमेल का एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा जो है वो उसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है। डेफिशिएंट लैक्टेशनल हिस्ट्री, ये तो सबको ही कहा जाता है कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है फीमेल की कि उसको लैक्टेशन करानी है, और इट्स नॉट ओनली गुड फॉर द फीमेल बट वी ऑल नो दैट इट्स गुड फॉर द चाइल्ड। तो जो भी माँ की इम्यूनिटी होती है वो उसके थ्रू बच्चे में जाती है, तो ना सिर्फ बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, माँ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर एज वेल। बट इट्स नॉट द ओनली फैक्टर, मतलब ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ दूध ही पिला रही है तो वो बहुत ही अच्छा है, नहीं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं, बल्कि ये तो एक बहुत बाद में फैक्टर आता है। अच्छा, कभी भी किसी वजह से कोई रेडिएशन थेरेपी अगर चेस्ट वॉल को मिली है किसी भी किस्म के ब्लड कैंसर, लम्प, किसी और मास की वजह से, तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है।
हार्मोन किसी भी वजह से यूज़ किए गए हैं, और फैमिली हिस्ट्री के जैसे कि मैंने बताई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 5% उस फीमेल में ज़्यादा रिस्क होता है जिसकी फैमिली हिस्ट्री होती है एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल फीमेल के। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉमन एज प्रेजेंटेशन इसकी 35-40 ईयर्स के बाद है, ग्रेटर देन 50 में भी इतना नहीं, लेकिन ये वाली जो एज है इसमें इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। बैरियर्स, डिफरेंट बैरियर्स हैं। अगर हम पेशेंट बेस्ड बात करें तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कि सबसे ज़्यादा अगर हम ये बोलें फैमिली सपोर्ट, हस्बैंड सपोर्ट से ज़्यादा खुद फीमेल्स बहुत रिलक्टेंट होती हैं सबसे पहले कि इसको बताने में ही। सबसे ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं खुद ही गायब हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, ये खुद ही से गायब नहीं होता है। और दम दुरूद जैसे कि बहुत अच्छी बात है, एक पोस्टर में भी था कि उन्होंने कुरानी आयत लिखी है, तो वो तो हम सबका ही बिलीव है और वो सब कुछ तो करना ही चाहिए। लेकिन मैंने खुद प्रैक्टिकली बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि फ़ीमेल्स जो हैं वो दम दुरूद के चक्कर में पड़ती हैं और 6-6 महीने के बाद आती हैं, जबकि कैंसर हड्डियों में फैल चुका होता है। तो आप वो सब भी ज़रूर करें, लेकिन अपना ट्रीटमेंट भी ज़रूर कराएं। थोड़ी सी जो हमारी सोसाइटी में शाइनेस है इस चीज़ को लेकर, इट्स जस्ट अ नॉर्मल लाइक ऑर्गन लाइक अदर ऑर्गन्स, तो इसको लेकर शाय होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके अंदर आप कोई बीमारी महसूस करें तो ज़रूर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। अब हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की इन्वेस्टिगेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपने खुद अपनी छाती का मुआयना करना है। महीने की कोई भी एक दिन जब आफ्टर पीरियड्स आप जो है वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती हैं, जो कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से विद द पामर सरफेस ऑफ योर हैंड यू कैन एग्जाम्पल ब्रेस्ट, यू कैन लुक फॉर एनी डिस्चार्ज, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू डोंट ओनली हैव टू लुक फॉर योर ब्रेस्ट, यू हैव टू लुक in your you have to examine both of your axilla, underarms also, to look for any lump. कोई भी अच्छा, एक चीज़ जो शायद आगे है मैंने भी डिस्कस नहीं की, उसमें यह है कि व्हेन टू कंसल्ट योर डॉक्टर व्हेन द सिम्टम्स आर अलार्मिंग। तो उसमें किसी भी गिल्टियाँ तो सबको ही पता है कि भाई गिल्टी ख़तरनाक है, दिखानी है, भले छाती में या भले बगल में। उसके अलावा स्किन में किसी भी किस्म का चेंज, प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस होती है, कीनू के छिलके जैसी जिल्द पर अगर तब्दीली महसूस हो। उसके अलावा कोई भी एसिमेट्री यानी दोनों छातियों में अगर आप देखें कि किसी एक में कोई चेंज आ रहा है साइज़ का या किसी भी किस्म का। उसके अलावा अगर आप ये फील कर रहे हैं कि ब्रेस्ट की जिल्द यानी जो निपल एरियोला है वहाँ पे किसी किस्म का कोई चेंज आ रहा है स्किन के अंदर। उसके अलावा किसी भी तरह का डिस्चार्ज, स्पेशली ब्लडी डिस्चार्ज, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उसके लिए फिर आपने अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको बताई थी कि ट्रिपल असेसमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। उसमें एक हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लंप हुआ कब से है, ड्यूरेशन क्या है उसका। दूसरा ये कि आप अपना अगर एग्ज़ामिनेशन कर रहे हैं तो उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप अपने क्लिनिशियन के पास आएँ। फिर आपका क्लिनिशियन देखेगा कि वो आपको गिल्टी किस नौयत की है। जिस वक्त हम ओपीडी में मरीज़ को देखते हैं हमें 90 से 95% इस बात का पता चल जाता है कि ये गिल्टी किस नौयत की है, मगर फर्दर इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में आती है आफ्टर आर एग्जामिनेशन, क्लिनिशियन एग्जामिनेशन इज़ अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राम। डिपेंड करता है कि मरीज़ की उम्र कितनी है। 30 से 35 साल या इवन 40 साल से कम उम्र औरतों में अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाता है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ ब्रेस्ट। लोगों को लगता है कि वो मैमोग्राम ही कराना है, वो तो बहुत अच्छा है, वो ही डिटेक्ट कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों इन्वेस्टिगेशंस बहुत अच्छी हैं। ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी लिख कर देनी है। कुछ बीमारियां अल्ट्रासाउंड में अच्छी पता लगती हैं, कुछ बीमारियां मैमोग्राम में अच्छी पता चलती हैं। तो ये, और कभी कभार वो दोनों भी साथ करने पड़ते हैं। तो मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड। एंड नेक्स्ट, अगर किसी भी किस्म की बायोप्सी की नीड हो तो फिर जो है वो आपका डॉक्टर आपको बायोप्सी एडवाइस करेगा, जिससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा एक प्रोसीजर होता है। ये आप अपने घर में भी जाकर अवेयरनेस दे सकती हैं कि बायोप्सी कोई ऐसा ख़तरनाक प्रोसीजर नहीं है, सुन करके उसी वक्त ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है ये। ठीक है। स्क्रीनिंग मैमोग्राम की फैसिलिटी अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्री से तो ऑब्वियसली यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल ये जो अक्टूबर का एडवर्टाइजमेंट है इसको बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। आपकी सभी डॉक्टर्स, स्टाफ
और जितने भी मेल्स यहाँ आए, अगर आपके घरों में आपकी अम्मियाँ हैं 40-50 प्लस, तो हर जगह 50% ऑफ में, इवन AKUH में बहुत अच्छा ऑफ दिया जा रहा है इस वक्त, और मेमोग्राम हो रहा है। तो इवन मैं अपनी अम्मी का ईयरली या 2 ईयरली मेमोग्राम ले जाके लाजमी कराती हूँ। स्क्रीनिंग मेमोग्राम की क्या डेफिनेशन है कि उसके लिए किसी सिम्टम के होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेमोग्राम होता है वो 2 साल पहले किसी भी बीमारी को डिटेक्ट कर लेता है, इससे पहले कि वो बीमारी किसी आप खुद फील कर सको, पैल्पेबल हो। तो स्क्रीनिंग मेमोग्राम की बड़ी इंपॉर्टेंस है। 40 साल की उम्र के बाद जिनकी फैमिली हिस्ट्री है वो तो ज़रूर ही कराएं, और जिनकी नहीं है वो भी 2 साल में ज़रूर। अब सारी लड़कियां अपनी अम्मियों का जो है वो मेमोग्राम, या अगर मेमोग्राम बिल्कुल भी नहीं करा सकते तो कम से कम मुर्शिद ला के अल्ट्रासाउंड आप लोग करा सकते हैं, तो वो एटलीस्ट आप लोग करा लें, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के जैसे कि मैंने बार बार बताया कि भाई ज़रूरी नहीं है कि जो है वो आप छाती का ही और पूरी छाती ही निकाली जाए, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है कि अगर मरीज़ चाहता है कि उसकी छाती बचाई जाए, कोई एक बता दे। बार बार मैंने जो बोला है कि हमारा मेन मोटो ये है, हमारा मेन एम क्या है? वेरी गुड, अर्ली डिटेक्शन। अगर अर्ली डिटेक्शन होगी, 2 सेंटीमीटर का जो लंप होता है, यानी ये हमारी फिंगर 2.5 सेंटीमीटर का ये होता है, ठीक है। अगर 2 सेंटीमीटर का लंप होता है ना, तो वो बगल तक जा चुका होता है, एक्सिलरी लिम्फेटिनोपैथी उसमें हो चुकी होती है, ठीक है। अब इसके क्राइटेरिया होते हैं बहुत सारे, जो कि मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी कि कब हमको छाती का ऑपरेशन करना है या कब हमको कीमोथेरेपी के लिए पहले भेजना है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं भी डिस्कस करूंगी कि कीमोथेरेपी के हवाले से भी बड़े मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के अंदर कि सर्जरी तो डर के एक वक्त को करवा ही लेंगे, लेकिन कीमोथेरेपी से जो है वो बहुत डरते हैं। तो अच्छा, अभी मैं बात कर रही थी कि सर्जरी के हवाले से, तो ज़रूरी नहीं होता कि हर जो है छाती को निकाला जाए। अगर अर्ली डायग्नोज हो जाता है या अगर हमें लगता है कि मेटास्टेसिस नहीं है, तो हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देकर ट्यूमर का साइज़ श्रिंक कर भी ब्रेस्ट कंजर्व कर लेते हैं। और कभी कभार अगर अर्ली ही स्मॉल लम्प डिटेक्ट हो जाए तो उसमें बड़े आराम से फ्लैप वगैरह लग जाता है और ब्रेस्ट को प्रिजर्व किया जा सकता है। इसमें कोई भी रिकरेंस का जितना भी रिसर्च हुई है उसमें रिकरेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मेस्टेक्टमी की और ब्रेस्ट को प्रिजर्व करने का सेम रिकरेंस का रेशो है। तो अगर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ब्रेस्ट प्रिजर्व हो सकता है, तो पेशेंट, अगर उसका डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है, तो इस चीज़ से ना डरे और उसको प्रिजर्वेशन के लिए जाना चाहिए। एक बात तो हो गई सर्जरी की। अब मैं बात करूंगी कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें ये ना सोचा जाए कि बाल गिर जाएंगे, उल्टी मतली, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं नो डाउट। एक बात जो मैं बताऊं कि ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो 9 महीने से 10 महीने का, बल्कि साल भर का ट्रीटमेंट है। बड़ा ही लंबा ट्रीटमेंट है, बड़ा ही डिप्रेसिंग ट्रीटमेंट है। तो उसमें बस ये है कि मरीज़ जो है, सबसे पहले तो उसको बहुत पॉजिटिवली काउंसिल करना, उसको पॉजिटिवली समझाना। दूसरा, फैमिली की सपोर्ट बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली जो है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, क्योंकि ये 10 मंथ्स का जो इतना लंबा ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले सर्जरी, फिर 8 से 10 साइकिल अगर कीमोथेरेपी की तो उसको मिल रही हैं, तो 1 साइकिल 1 महीने में अगर दे रहे हैं तो वो भी बड़ा मुश्किल उसके लिए वक्त होता है। तो कीमोथेरेपी क्या करती है कि जो खून के अंदर छोटे छोटे खलिए या जहाँ से ब्रेस्ट लिया गया होता है वहाँ पे अगर कैंसर के छोटे छोटे खलिए रह गए होते हैं तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो कीमोथेरेपी अगर जिन मरीज़ों की नहीं होती तो उनमें बहुत हाई रिकरेंस होती है एज़ कम्पेयर टू पेशेंट्स जो कि कीमोथेरेपी की पूरी साइकिल्स देते हैं। रेडियोथेरेपी की कुछ इंडिकेशंस होती हैं, हर मरीज़ को रेडियोथेरेपी नहीं दी जाती। जिनके ब्रेस्ट कंजर्वेशन होती है उनको लाजमी रेडियोथेरेपी दी जाती है, विच इज़ अ लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट। उसके अलावा ये कि कुछ हार्मोनल थेरेपीज़ होती हैं, जो कि कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि बाद में ली जाती हैं, और फॉलोअप्स जो हैं इसमें बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं। इन द एंड हाँ, स्टेज की बात मैंने नहीं की, जो भी स्टेज हो, स्टेज 1, 2, 3, 4, इन द एंड ये है कैंसर और रिकरेंस इसके अंदर है।
अच्छा, स्टेजेस में पेशेंट्स बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि स्टेज कौन सा है। तो स्टेजेस में ये है कि अगर स्टेज 1 होता है यानी छाती तक ही लोकलाइज्ड होता है और साइज़ भी छोटा होता है, तो उसके जो है 90% जैसा प्रोग्नोसिस है, यानी 90% एक नॉर्मल ज़िंदगी मरीज़ जो है वो गुजारेगा। इसीलिए इसके बारे में जो दी जा रही है इतनी आगाही, वो यही है कि ये एक इलाज वाली बीमारी है और मरीज़ अपनी नॉर्मल जैसी ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इवन मुर्शिद में आज तक जो मरीज़ आया है, शायद मैंने 2 मस्टेक्टमीज़ की हैं, 2 या 3, वो सारे आते हैं और मुझे उन सबको न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी के लिए भिजवाना पड़ता है, क्योंकि या तो उनके स्किन चेंजेस या साइज़ बड़ा होता है या एक्जिला तक तो पहुंचा वही होता है, तो वो सर्जिकली ट्रीटेबल नहीं होते जो ट्यूमर्स यहाँ पर आते हैं। जो सैलाब ज़दगान के भी जो मरीज़ आए थे, तो उसमें भी सारे, उसमें तो जितने आए थे वो सब जो थे वो सर्जरी वाले तो थे ही नहीं, तो उन सबको जो है वो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के लिए भिजवाना पड़ा। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि रिंगटोन होने के बावजूद, हर आगाही देने के बावजूद जो है वो हमारे पास आज भी जब ब्रेस्ट कैंसर आता है तो वो सर्जिकली ट्रीटेबल होता ही नहीं है। बड़ा खुशी होती है देख कर के अरे भाई चलो ये सर्जिकली ट्रीटेबल है, इसकी सर्जरी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेजेस के बारे में मैं बात कर रही थी। तो 1 का 90% प्रोग्नोसिस है, 2 का तकरीबन 70% तक प्रोग्नोसिस है। उसमें ट्यूमर बगल तक अच्छी तरीके से जा चुका होता है, सर्जरी कभी कभार मुमकिन होती है, कभी कभार न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी के लिए भेजते हैं। स्टेज 3 में 50% 50 से 60% तक अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। स्टेज 4 में 30% प्रोग्नोसिस होता है। मतलब आप ये सोचेंगे एक वो बीमारी जो स्टेज 4 यानी हड्डियों, लिवर, लंग, ब्रेन तक पहुंच चुकी है, उसके बावजूद जो है उसका 30% प्रोग्नोसिस है, यानी फिर भी जो है वो ट्रीटेबल तो है एटलीस्ट। तो अगर आपको कभी पता चले कि ब्रेस्ट कैंसर है बहुत बड़ा, तब भी उसको लाएं और उसका इलाज ज़रूर कराएं। तो ये हमने बात की ट्रीटमेंट की और स्टेजेस की। नेक्स्ट आई थिंक इट्स द लास्ट। अच्छा, ये मैंने एक छोटी सी पिक्चर लगाई थी, इसको आप हटा दें, मेरे ख्याल में सब टॉलरेट नहीं कर सकते इसको। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मेन आज अगर एक भी बस ये मैसेज आप लोग अपने घर ले गए कि अर्ली डिटेक्शन सेफ लाइव्स, सारी बातों का मकसद है अर्ली डिटेक्शन, सो अ पेशेंट कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ स्पैन। तो जो है आप लोग सब ये डिसाइड करें कि आप लोग सब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, आज ये प्लान करें और आप लोग इसकी अपने घरों में जाके, इतनी सारी नर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी अवेयरनेस दे सकते हैं अपने घरों में, अपने रिलेटिव्स को। थैंक यू।